Tanishka received. Shivain received. Okay. Ananya received. Okay. Avika received. So, gentlemen, in this condenser, there are so many Bihu received. small topics included, like where the condensers are used, how the condenser are constructed, what are the different types of the condensers, and like so many are there, how the condenser are used in power plant. Avika received. So condenser in the power plant is Avika itself received. a Bihu received. device, or you can say it is a type of a small plant in itself. Means what? That the condenser is something which has different type of small sections in it, and there are so many types, and it is used to condense the exhaust steam, either that is coming from the steam engine or it is coming from the steam turbine. And further, it is also used to remove the air and the other non condensable gases. So let's start with this. Actually, you can raise a question that why condenser is used, because condenser considerably reduces the requirement of makeup water. Means what? That you are condensing the steam which is already pure, and then you have to add a very small amount of the water to it, so the need of the makeup water is very less. Start. So in this particular class, we are going to discuss the definitions, the functions, the types, the constructions, the zones, and the air cooling zone inside the condenser. So these are the basic topics. I have already told you about the definition and its function. But yes, definitely we will again go through this. So definition: the condenser is a device which is used to condense the exhaust steam from the steam turbine. Actually, when the steam is leaving the turbine, it may be of wet condition. Means what? The steam is having some vapor and also some water particles in suspension, and it is very difficult to handle two types of the phases with a single pump. So what is necessary, what is required to do, that we have to first convert the steam into a liquid form,
and then it can be easily pumped. So what the condenser basically performed, it convert the steam into the liquid, and definitely by doing so it reduces the requirement of feed water from 100% to 1 to 5%. Means what, if you are requiring 100 liter of makeup water in each cycle of turbine plant, then only 1 to 5 liter of water, makeup water, is necessary by using condenser. It has one pump which can extract the condensate. Actually we can use the gravity system also, but it will take, although it do not require any pump for extraction of the condensate, but it considerably takes a longer time. Therefore we prefer to use pump to extract the condensate. Now function. What are the different function of the condensers? It condenses the exhaust heat or the steam. It removes air from the steam. It removes non-condensable gases. Non-condensable gases means what, जो कि कंडेंस नहीं हो सकती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है वो कंडेंस नहीं हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंडेंस नहीं हो सकती है, और भी कई सारी गैसेस हैं जिनको कि कंडेंस नहीं किया जा सकता है। तो वो जब हम स्टीम को वाटर में कंडेंस करते हैं तो ये सारी गैसेस जो है वो निकल जाती हैं। ये आगे फीड वाटर की रिक्वायरमेंट को कम कर देता है। जैसे मैंने आपको बताया, किसी सिस्टम में अगर सिस्टम छोटा है तो मेकअप वाटर जो है उसकी रिक्वायरमेंट 100% से घट के 1 से 5% तक भी रह जाती है। ये एफिशिएंसी को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है ये बात आप जान लीजिए। एफिशिएंसी को बढ़ाने का मतलब, जो अगर ये कंडेंसर ना होता तो जो वेट स्टीम निकली है उसी को आपने आगे फिर बॉयलर में देना पड़ता, और ऐसा पंप बनाना बड़ा मुश्किल होता है जो कि दोनों तरह के फेज ऑफ मैटर को कंट्रोल कर सके और डिलीवर कर सके। तो ये बेसिकली, क्योंकि ये फीड वाटर की रिक्वायरमेंट को भी कम करता है, और फीड वाटर को सप्लाई करने के लिए हमको बहुत सारे दूसरे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सीधी सी बात है कि अगर फीड वाटर को जो फीड वाटर हमने सप्लाई करना है, अगर उसका परसेंटेज कम कर दिया जाए तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और ये वर्क आउटपुट को भी बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है ये बात आप जान लीजिए कि हम बेसिकली करते क्या हैं, जो एक्सपेंशन ऑफ टरबाइन है, एक्सपेंशन ऑफ स्टीम है इन द टरबाइन, उसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर से भी, यानी कि अगर हम कंडेंसर में एक प्रेशर, कंडेंसर के जो अंदर का प्रेशर है उसको हम कम कर दें तो टरबाइन के अंदर हम स्टीम का जो एक्सपेंशन है वो बढ़ा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे हमारी वर्क आउटपुट बढ़ेगी और उससे हमारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। कंस्ट्रक्शन अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन के अंदर कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेन पार्ट्स इन अ कंडेंसर। कंडेंसर इज हैविंग अ कंडेंसर बॉडी in which the steam is condensed. A supply of cooling water should be there, and one of the air pump is required to remove air and uncondensed vapor. मैंने आपको बताया था कि कुछ एयर रह जाएगी जो कि डिजॉल्व नहीं होती है, और कुछ अनकंडेंस्ड वेपर जो कि मान लीजिए कि किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी 100% तो नहीं होती, तो कंडेंसर की भी 100% नहीं होती। तो जो अनकंडेंस्ड वेपर हैं उनको बाहर निकालने के लिए, ताकि आगे जहाँ वाटर आप सप्लाई कर रहे हैं उसमें कोई स्टीम की ड्रॉपलेट ना रह जाए, उसके लिए हम एयर पंप का यूज़ करते हैं। कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप का यूज़ करते हैं अगर हमारे को स्पीड को बढ़ाना है, और अगर कोई जैसे पानी अगर ऊपर से अपने साथ बहा के ले जा रहा है तो उसमें पंप की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हमने कंडेंसेट को तेज़ी के साथ आगे सर्कुलेट करना है, देन वी नीड ए पंप। एक हॉट वेल मतलब जहाँ ये जो स्टीम पानी में कन्वर्ट हुई है, ये गर्म होता है पानी, और इस गर्म पानी को हम एक जगह स्टोर करते हैं, एंड दैट स्टोरेज टैंक इज़ नोन एज हॉट वेल। और इसी के साथ हमारे पास जो ये पानी हमने यूज़ किया है, इसको रिसर्कुलेट करने के लिए, बार बार सर्कुलेट करने के लिए हमारे पास
एक अरेंजमेंट होना चाहिए इस कूलिंग वाटर का। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ कंडेंसर में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कंडेंसर का डायग्राम अगर आप देखें तो इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ ए टाइप ऑफ द हीट एक्सचेंजर। आप देख रहे हैं कि स्टीम जो है वो ऊपर से आ रही है और कूलिंग वाटर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से आके राइट हैंड साइड पे निकल जा रहा है, और ये करने पर ये स्टीम को कंडेंस कर दे रहा है, उसकी हीट ले रहा है, और ये जो पानी है ये जो ऊपर से स्टीम आ रही है ये पानी में कन्वर्ट हो जाती है और ये नीचे इकट्ठी हो जाती है, और नीचे फिर कंडेंसेट वाटर आउटलेट आपको दिखाया गया होगा। तो ये जो है TC1 इज़ द टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर एट इनलेट एंड TC2 इज़ द टेम्परेचर ऑफ द कूलिंग वाटर एट आउटलेट। तो ये इसी तरीके से जो स्टीम आ रही है उसका टेम्परेचर है TH1 टेम्परेचर ऑफ द स्टीम एट इनलेट एंड TH2 टेम्परेचर ऑफ कंडेंसेट एट आउटलेट। एंड सिमिलरली यू कैन सी द G स्टैंड फॉर इट्स एंथैल्पी के, उसके अंदर कितनी एंथैल्पी है। तो ये जो है वो GC और GC दोनों दिखाया गया और ऊपर GH1 और GH2 दिखाया गया है, ठीक है। अब अगर मैं जोन्स की बात करूं तो कंडेंसर के अंदर एक बहुत छोटा सा पोर्शन होता है, एक सेंट्रल पोर्शन होता है जिसको कि लॉन्गिट्यूडनली समझते हैं ना, एक्सिस जो उसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उसके जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके हिसाब से सेंटर पे एक थोड़ा छोटा सा पोर्शन होता है। इसमें बॉटम को नहीं जोड़ा जाता, मतलब ये पोर्शन बॉटम तक नहीं जाता, उससे ऊपर ही रहता है, और ये सेंटर पोर्शन जो है ये सेपरेटेड होता है, और इस पोर्शन को हम एयर जोन कहते हैं। अच्छा, होता क्या है कि जितनी भी एयर रिलेटेड चीज़ें हैं, मतलब कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई या ऑक्सीजन हो गई, तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है यहाँ तक जब वो गैसेज आ जाती हैं जो कि कंडेंसर में रिलीज हुई हैं, तो इनको मैंने आपको बताया था कि ये जितनी भी गैसेज होती हैं इनकी जो डेंसिटी है, और ख़ास तौर से डेंसिटी के हिसाब से जो इनका पानी में मिक्स होने का जो प्रोपोर्शंस है, मिक्सिंग प्रोपोर्शंस है, वो जब पानी को आप हीट करते हैं तो उसकी डेंसिटी कम होती चली जाती है, और उसके अंदर जो ट्रैप्ड गैसेस हैं वो ट्रैप नहीं रह पाती और वो निकलती हैं। तो ये जो गैसेस हैं ये जिस पर्टिकुलर पार्टीशन पे जाके इकट्ठी होती हैं तो वो एयर जोन कहलाता है, और यहाँ पर एक हम वेंट पाइप लगा देते हैं, कभी कभी हम एक्सट्रैक्शन पंप भी लगा देते हैं ताकि तेज़ी से जो है वो एयर इस पोर्शन से निकलकर बाहर आए। सो दिस इज नोन एज दी एयर जोन इन कंडेंसर। तो एयर कूलिंग जोन का ये जो फोटो है, जो डायग्राम है, इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप देख सकते हैं कि जो कंडेंसर की कॉइल है वहाँ एक फ़ैन लगा हुआ है, और ये फ़ैन बेसिकली क्या कर रहा है, जो कूल एयर को सक कर रहा है ताकि ये जो कूल एयर है वो इस पे पड़े कंडेंसिंग ट्यूब्स पे, और ये कंडेंसिंग कॉइल जो है वो वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करे और फिर उसको आगे सप्लाई करे। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं कि स्टेनलेस स्टील फॉग लाइन, ये जो आप देख रहे हैं बेसिकली यहाँ पर मतलब वाटर जो है वो एक जेट की फॉर्म में जो है वो निकल रहा है। अच्छा, क्योंकि आगे एक ब्लोअर लगा हुआ है, एक फ़ैन लगा हुआ है, तो पीछे वाली जो एयर है वो वार्म होती जा रही है, आप देख रहे हैं, और फिर इस वार्म एयर को बाहर जो है वो इवेपोरेटर फ़ैन के द्वारा उसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये जो डायग्राम है वो अंदर वाला जो सेक्शन है कि जहाँ पर ये वार्म एयर, एम्बिएंट एयर है, इसकी जो सप्लाई है, ठीक है ना, ये जो एक पर्टिकुलर ये जो एक सेपरेशन के बीच में एक लाइन आप देख रहे हैं कि एक तरफ वार्म एयर है, एक तरफ वार्म एम्बिएंट एयर है। तो एम्बिएंट एयर मतलब जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे है वो एयर, ठीक है। तो वो एयर जब अपनी मतलब इस वाटर जेट में जब इसकी हीट ले लेगी तो ये आगे कूल एयर हो जाएगी, और कूल एयर फिर इसको कंडेंसेट को ठंडा करेगी। सो दिस इज़ नोन एज दी कूलिंग, एयर कूलिंग जोन। सो जेंटलमैन, आज की क्लास में आपने जाना
कि कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, आपने जाना कि जेट कंडेंसर क्या है, आपने जाना कि सरफेस कंडेंसर क्या है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि जो कंडेंसर है उसके डिफरेंट फंक्शन क्या क्या हैं, वो एफिशिएंसी भी बढ़ाता है, वो वर्क आउटपुट भी बढ़ाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जेट कंडेंसर कई तरह का होता है, पैरेलल फ्लो टाइप होता है, काउंटर फ्लो फिर लो लेवल हाई लेवल होता है, इजेक्टर टाइप होता है। और उसके बाद में हमने इसके बारे में जोन्स के बारे में पढ़ा और हमने जाना कि एयर कूलिंग जोन जो कंडेंसर में यूज़ किया जाता है उसका मतलब क्या होता है। तो ये यहाँ तक हुआ। कल या नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो हम लोग वैक्यूम एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली वी विल गो टू द वैक्यूम एफिशिएंसी, किस तरीके से ये जो कूलिंग है किस तरीके से उसको इफेक्ट करती है। थैंक यू सो मच।